ठीक है. All right, guys. I have started the recording, so this session is now recorded. So, guys, I have I have asked my. Of course, there are a lot of placements, but recent placements. We have we have Bhupender, we have Mohit, and yeah, Money. Is that Manish or Money? You are Manish. I can't hear you, bhai. ठीक है, not an issue. So, guys, as I was saying, that I've asked my recent placements to join and share their experience in terms of the training process, in terms of interview process, in terms of how they went through, what extra, what special that they did, which might be lacking in the current candidates who are giving interviews, so that they can learn from their progress and can be the part of the placement process as well. So let's start with Bhupendra. First of all, guys, I'm really grateful and thankful to you that you have joined and spared some time for us. So, Bhupender, let's start with you alphabetically. So, Bhupendra, I would really appreciate if you can let us know about yourself a bit, professionally, of course, and then let us know about the interview process and how it went through for you, and what are all the pros and cons that you've faced, and finally you have started working. So, yes, Bhupendra, the stage is all yours, and we are all ears. So, please go ahead, bye. Sure, sure. First of all, thanks a lot, Rohit bhai. After all, this is happening just because of you. So let me share about my experience. I must say, like this profile I get just because of you, because you taught me everything, like from the scratch. Okay. So currently, happily, I'm working as a business analyst, and it's been like a really good profile. And if I talk about the interview process, what were the pros and cons are there? So in genuinely, I must say, like in the first 2 3 parts of the interview, I'm like I have given around 12 plus interviews. Okay. So sometimes there are team who is hiring for a candidate, they need more technical. Sometimes they don't want a technical, they looking for someone like functional guy. Okay. So we have to be prepared for the both things, like wireframing, okay, and making a good documents, whether it's FRS, SRS, SOW, everything. So is anybody want to know something? Please ask. Yes, guys, please ask questions in terms of what sort of interview questions, how to manage, what sort of common questions or repetitive questions. So, yes, yes, please go ahead, guys. Yeah, hi Bhupendra. Hi, hi, how are you? I'm good. How are you? Yeah, I'm fine. First of all, many, many congratulations to you for getting such a great opportunity. Thank you so much. Actually, I want to know what is the how you apply to the HR for getting calls and from which website, like from LinkedIn, from Naukri. How did you getting the calls from the HR? Like everything is done by like Rohit sir, okay? Like they have a great connection and like lot of data of HRs and companies portals, okay? So the Mm-hmm. call is getting only from the Rohit sir side. So I'm the person, I'm just taking care when the HR is calling and which organization. So like I must say, if I get a call from Jaipur, okay, and if he or she told me we are from this company and we got your application, okay, so I simply go to the LinkedIn profile and search about them. What was the company profile? Okay, like if the company is financial company or a service based company or a product based company. So these types of things, firstly I gather from the like company website or the LinkedIn page before getting a first call of interview. So
when the interview started, so most of, like, I must say, the most genuine and the most repetitive question is, they must looking for a guy who have a good communication skills as well as a good representable skills as well. Okay, Mm-hmm. so in my terms, before getting hired, so many companies are there who need a guy who is more technical, but I'm not that much technical guy. I know Power BI, I learned that. I know wireframing tools as well. So sometimes it's happen. They ask you question from out of the box. Okay, so there are in business analyst there are pre-sales profiles, post-sales profile, as well as a business analyst plus data analyst profile. So it depends what kind of guys they are looking for. And how much technical you prepare for the interview? Like, did you prepare SQL also? And if that, so how, at what level did you prepare? Yeah, so SQL I prepared on a level of like a dashboard making while connecting with the Power BI. Okay, so SQL basically used for managing a data. So I just use YouTube. Okay, take out some raw data for the SQL database and putting that database in the SQL while putting some queries, and then the queries came out in the Power BI tool for making a dashboard. So this is how I use or learn SQL. Like, you learn SQL only in the context of Power BI or like data cleaning, you say that. Yeah, yeah. This is the only if you got hired somewhere and they are using SQL, you have to only put a queries over there, or you just have to clean the data by using Power BI or MySQL. Okay. So in the job which you get, like there is the demand of Power BI also here. No, like in my profile, there is no Power BI or no SQL. I'm working as a project consultant, I must say. My Mm-hmm. totally profile goes around with the documentation part and the presentations with the clients. Okay. And how much time, like in how much time you get the opportunity? Like, I started in like June, and I started in the June and July, August, in August last. Yeah. like started giving interview from June, right? I started giving an interview after the 30 days when I learned all the things from like Rohit sir. Then I started giving the interview. Like we can say in 1.5 months you get the opportunity. I think. Interview calls. Okay. Okay. Yeah. Thank you, Bhupendra. That I all I want to know. No worries, no worries. Hi, Bhupendra. First of all, Hi. heartiest congratulations. Thank you so much. I just want to know that what are the non-technical questions you've been asked in the interview, and how did you Non-technical manage it? questions, like in my cases, they give me a lot of like topics. Sometimes they ask me, give us a 4 to 5 use cases. If the topic is something like there is a, what can I say? Like there is a ice cream vendor who wants an application to notify the nearby area that I am in this spot. If anybody needs ice cream, they can came out or just ping me up. Okay, so most of the times there are these kinds of topics they have given me over the video call. So I have to create the use cases. Okay, as a customer, Okay, I want to know everything. Like Rohit Bhai will teach you how these use cases work. okay, Yeah, okay. Thank you or so much. Mm. or they ask you what are the BRDs, what are the FRDs, what are the SRS, SOW. Sometimes they ask you in a very deep on way, tell us in BRDs who are the members, in FRDs who are the members, everything. Oh, hello, hello.
Yes, I'm audible. Hello. Yes. Yes, Okay, yes, Ankush Bhupinder, bhai, go ahead. I was just wondering, like, if you can let me know, like, during the interviews, did they ask you about the real projects, or what projects did you spoke about when they interviewed? Yeah. So they asked me what kind of projects you have worked. So I simply said that the company I am working with, the like Roycer company. So basically, this is a healthcare company that used to deal with the IT projects in the healthcare department only for the US clients. Okay, so we create a HRMS tools for them. So it depends. If you are giving an interview for a product-based company, you can say we have our own HRMS product that we are selling to the different clients in the USA in the healthcare domain. Or if it's a service-based company, in that term you can say we are providing our services in their HRMS tools by giving them some enhancement in the sales part or the prescription part. So these types of things I am mostly doing while giving the interview. Okay, so do they ask, like these project details in detail? Like, do they ask you about the features and all, and how Yeah, you've yeah, been they will ask helping? what kind of technologies you are using. Okay, on what were the state, what kind of client. Sometimes they ask you what was the client name, so you can take any kind of like any healthcare client name in that. Okay, right. And how about your first or second week while you started working? Like, I mean, like if you find it challenging in order to understand the things, because I mean, like going into an environment where you will have to work, right, without any prior real experience. So if it was, like manageable, or if it was difficult for you to manage those things in place. Although it is not any kind of pressure thing that I can't handle. Okay, so it depends on the company to company. Okay, but every IT company, if they hired a business analyst or a project manager or a consultant, okay, firstly they will give you a total overview of their company, what kind of products or services they are giving. So it hardly takes 1 or 2 weeks, and in that 1 or 2 weeks you can easily learn if you have a knowledge, if you have a skills, what are the BRDs, FRDs, documentation, technical skills, you can easily grab the things like I have to do this work only. Right. Okay. And Bhupender, I got like one last question. So, do Yeah, they, like promote, or do they allow to work on, I mean, like using AI tools for documentation and all? Like, if they allow that, or I mean, like you have to do it without their awareness? in my organization they are allowing me to use chat gpt or Gemini just to write the codes or just to maintain the proper, but I can't copy and paste them in the document part. I just have to take some help over there, like the good words and what kind of the good headlines we can use. Right, right, right. Okay, I'm good. Thank you, and congratulations. Yeah, yeah. ठीक है all right रोहित भाई एक मिनट Bhupendra हाँ जी हाँ जी please 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 Yes, भूपेंद्र yes. कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल Yeah, भूपेंद्र yeah. मुझे एक Thank you. चीज जानना था आपसे कि Yeah. अगेन आपने बोला कि आपने आई थिंक 12-13 तो इंटरव्यू दिए हैं, तो मुझे ये Yeah. जानना था कि आपके हिसाब से क्या क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स टच करने चाहिए बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यूज। टेक्निकल देखो मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इन जेन्युइन बताता हूँ, आपको ये पता होना चाहिए फ्रंट एंड कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, बैक एंड में कौन सी यूज होती है, क्या लाइब्रेरीज होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अगर आप इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे तो फ्रंट एंड में आपने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है, बैक एंड में कौन सी यूज की है, तो आपको नेम पता होने चाहिए एंड यू कैन सिंपली से आई नो these these technologies we are using, but I am not that technical guy who know the coding and all. Okay, sometimes they ask you about testing, तो उनसे ये बोल सकते हो आप I am doing a UAT as a functional testing only, I have to check the software is it working good or not. ठीक है भाई, थैंक यू। Yeah.
ठीक है. All right, guys. Thanks, Bhupinder. I have a And question also. yes, 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 yes. please ask. भूपेंद्र मुझे ना एक आपका ये चाहिए था ओपिनियन इस पे लाइक इफ somebody is transitioning from software development to BA then what should be the path for this like for me I have like 2+ years of experience in software development so what should I the things that I should keep in mind for this one. Like if you are in a software development, you already know about the use cases and everything, right? Yes. Okay. So you have to just like prepare 2 or 3 skills for like documentation, how the documentation work, how they make. Okay. So like Mm. proposal writing, BRDs, FRDs, and SRS. These are the most main documents that maintained by the BA. Okay. And Mm. other thing, if you are from a software development background, so it must be like only okay for you. You just have to make a documents. Okay, like it is a favorable thing, I think then. Yeah, it's a more favorable thing. Hopefully, you get a chance as a like a project consultant because you have a development background, so you know the things more wisely. Yeah. Okay then. Thanks a lot. Yeah. Just to extend the answer to this question, Asta, I am sure ki, Mhm. we've had this conversation earlier as well. And I am sure with your technical skills, take a plus functional and managerial skills of a business analyst, you could land up for a better, package monetary wise and for non-monetary better designation, which is more into IT business analyst, system business analyst, system data analyst, or a techno-functional business analyst, which is a good profile. So transitioning would not be a big issue. It is just that you already have the technical skills just to flourish and just to improvise more onto the documentation part, communication part, stakeholder management part. So that would not be a big issue, which we will cover, of course, in our sessions consecutively and simultaneously as well. And once your interviews will start, I'm sure we'll all help out each other, and I'll make sure that you get the desired and required placement done. Okay, right. Thanks a lot. Sure, 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 Rasta. Thanks, Bhupinder bhai. There are two, three people more who are waiting. So thank you so much, Bhupinder bhai, and Yeah. we wish you all the best. Thank you so much for your time, and always stay connected, bhai. You are already in my Yeah. alumni Yeah. group. And anytime Yeah. and Sure. Sure. whenever you need any support or help or any sort of multiple switches, other switches, I'm there to support you, Yeah. bhai. For sure. For sure. Thank you so much, Rohit. Sir. Thank you ठीक so है, we much. all wish you all the best for your future endeavors मेरे भाई. And Yeah. आना कभी ऑफिस में, Yeah. फिर Sure. Sure. Like अभी कनेक्ट. तो मैं थोड़ा वर्क फ्रॉम होम हाँ, पर आई नो हूँ, आई नो, अभी थोड़ी तो तबीयत आप आउट खराब ऑफ है। स्टेशन हो. अच्छा. हम्म। ठीक. ठीक है, ठीक है, टेक केयर मेरे भाई, अपना ओके। ख्याल रखो और स्टे ओके। कनेक्टेड. Yeah. Sure. ओके, Bye, ओके guys. भूपेंद्र भाई. Okay. थैंक्स भाई. Best of luck, guys. राइट. Thanks, Bhupendra. या मनीष भाई, कैन यू हियर मी? मनीष, मनीष, कैन यू हियर मी भाई? आई वी कांट हियर यू भाई. Check your mute on and off. No, Manish bhai, we can't hear you. चलो, खैर. Mohit, can you hear me? Mohit, just a moment, guys. Mohit, can you hear me?
Let me call. Just a moment, guys. Hello. Yeah, I'm audible, Rohit bhai. Hello. Hello. Yeah, Rohit bhai, I'm audible. Yes, yes, yes. Mohit bhai, right? Yeah, Rohit bhai. All right, all right. Okay. So, guys, we have Mohit here. He has been placed for a out of this state, and he's got a good placement. And I have seen Mohit personally, I mean, giving interviews, and it is a huge achievement for him. And Mohit bhai, I would really appreciate if you can let us know a bit about yourself and let us know, I mean, the process, how you went through in terms of giving interviews and answering all those questions in order to get the placement done. So, yes, bhai, stage is all yours, bhai. Please carry on and enlighten Sure, Rohit us. bhai. Sure. Hello everyone. I just want to share like currently I'm working as a senior business analyst in Ahmedabad. Okay, so I just want to share a small part of my journey with you all. Like when I joined this training, I was just like many of you, like trying to understand the concepts and trying to figure out how to crack interviews. And honestly, sometimes I feeling confused. But during this entire journey, Rohit Bhai was there at every single step, and he didn't just teach us the concept but actually he guided us in real sense. And in every life class, he gave his full effort explaining and re explaining, giving practical examples, sharing real time scenarios, and like making sure like we understood how to apply that knowledge in the interviews. So, like one thing which I realized in the learning that always it's two way. Like Rohit Bhai gives us everything from his side, but it is up to us, like how much we grab that knowledge and how much we practice it and how much like we use that in interviews. So, like when you grab all the information, okay. So when you go for the interviews, always try to understand what the company, like exactly company is looking for the particular role, because when you like know the JD of that particular company with what they are hiring for, so you can prepare yourself accordingly. So before giving any interviews, always go through the job description very carefully and understand the JD, and always try to match your learning with their expectation and then prepare yourself. So that's what I have done, because like I got on information all about that thing. But when I give the interviews, like I have done this placement in only in 5 interviews, but when I give all these interviews, I like know about what the question will be asked by the interviewers and what exactly they are looking. So according to that, I just prepared myself and gave the interviews. So I just cracked that. And in the last, I just want to say a big thank you to Rohit Bhai. Yeah, that's all. Sure, bhai, sure. Thank you so much. You're welcome. You're always welcome, bhai. Yes, Yeah, guys, please ask questions so that we all can yeah, understand sure. what needs to be done. Rohit bhai, may I audible? Manish here. हाँ, Manisha, I can hear you. ठीक है, ठीक है. Okay. Yes, yes, guys. Anyone who has any questions? Anyone, Mina, you can ask Shasta. any question. Yeah, Mohit. Yeah, Ankush. I just wanted to know, like, what are the most important, like topics that you believe, like, are from the point of interview? Yeah, like Ankush, what the thing is like, it's depend on the companies, like what the exactly they are looking like. They are looking for the documentation BA or the like looking for the client handling BA. So basically, what exactly I faced, like they're looking someone who's like service based company always try to find like client facing BA. So like how to deal with the clients, how you like when there are any conflict between the stakeholders, so how you manage that, and when any ad hoc requirements come from the client side, so how you manage that. So these are the questions which are repetitive questions which I have heard in all the interviews. Okay, right. Mhm. Hello, Mohit. Hi Praveen. Mohit, congratulations, first of all.
Thank you, Or Praveen. I just wanted to ask you one more thing. Again, so this current opportunity you're working on, so is this aligning to the domain which you have showed, or the domain is totally different here? Like, to be honest with you, I have showed each and every domain. Like, I have showed BFSI, I have showed e-commerce and HRMS, these domains. But basically, I've like they have hired for me the financial domain. Okay, this Okay. BFSI. But like when you give the interviews, so you have to be aware about each and every domain, like because it depends upon the company, like what they're exactly looking. So I'm Okay. working for the fintech domain, by the way, right now. Right. Okay. Okay. And how these questions basically change. Again, surely they would have, at least in this particular fintech interview, they would have asked you this particular question about the domains and all, I think. Mhm. And so just wanted to ask you, like, if someone throws you these kind of questions, like what actual answer you provide to them? Like basically, always they try to ask about us, like what our previous project and how we handle that. And they also put questions about their domain, also fintech, like if we know about like financial domains questions, kind of things. Okay, okay. So I also do presume, again, when you're giving some specific interviews, again, suppose if this is a fintech project, right? So these clients probably use some kind of terms also. So I think you should be aware about these terms, or Yeah, you are sure. totally good with Yeah, general because you terms. have to be aware about the terminologies as well, because Mm. they will ask you about the terminologies, how you use that, and what the tools and what kind of technologies you use. You have to be aware of that, and how the tool and terminology you used in that project or that part. So you have to be Okay, aware of that. okay, okay. And Mohit, so starting from your first interview to the fifth interview, like what actually you feel? So again, first interview, if I'm sitting in the first interview, surely I'll Hmm. be totally blank. Probably I'll be understanding, or I'll be having knowledge whatever I learned. So Hmm. how the interview from first to the fifth interview changes you, or you totally understand what you need to prepare well? Like when I was in first interview, it was just like in front of the Rohit Bhai. Rohit Bhai knows everything about my first interview, how it went. So like I was like not totally blank, but sometimes the questions which is out of the box, the interviewer can ask you. So you have Mm. to just deal with the interview that if you know anything about that particular question, you can just tell them, or if you don't know, so you have to just pass the question, or can say it like you don't know much more about that technology or tool or the feature what they are asking for. So you can deal with that, but like initially you like you have to just like deal with that questions. Okay, okay. So as on interview progresses, you basically learn that art. Yeah, Okay. because every interview gives me like additional questions, like what the other interviewer can ask me, like it like they can ask about the client requirement, like they can ask about the how to handle like project management, how to develop like how to deal with your stakeholders. So these kind of repetitive questions what the interviews can ask, so I Okay. prepare the notes according to that. Okay. And any specific scenario-based question you remember, and for you, if you want to share? Yeah, like scenario based all times, like as I told you, like about the additional requirement, like if Mm. you are making any product or any feature, developing any feature. So if you have a timeline, so if you like client gives you any additional requirement, so how you deal with that particular timeline and how you finish that work as well as that particular additional requirement. So how you deal with the clients, how you, so I can like explain that I can escalate that particular requirement to my product owner, or ask for the like more time to finish that particular product to the client. So there's these are the questions which I which are the scenario based questions. Okay. Okay. Thank you, Madhvay. Yeah, thank you. ठीक है ठीक है मोहित भाई thank you so much. Thank you so much for Mhm. sparing some time for all of us. We wish you all the Thank best for your future endeavors. thank And you, Rohit bhai. anytime you need any support, ठीक है आप
out of state ho, out of station ho. Bhavna is also there, so I'm sure Yeah, you'll yeah. be supporting He's her as he's well. will coming. Yeah, Ha ha, absolutely, absolutely. She pinged me. So let me know whenever you need any document, any support, or any sort of sure, switch help out. So I'll be there to support you for sure, bhai. sure, Rohit bhai. And thank you so much once again, Rohit bhai. And then it's all right, mere bhai. Just take care, stay connected always. You are in my Sure. restart group. So is Yeah, sure. Bhavna. So take care, mere bhai, and Okay. we'll always be connected. Sure, Rohit bhai. Thank you so much. All the Take best, care. everyone. Take care. Yes. Hello. Yes, Anuj bhai. Just a moment. Yeah. Hey, sorry to interrupt, Rohit. Hi. Mohit, there is a one quick question. Actually, I'm facing some concern just yesterday from Uh, US Anuj, staff. just a moment. Anuj bhai, just a moment. Actually, Mohit left. Manish is here, so you can ask him as well. So, Manish bhai, can you hear me? Yes, Rohit bhai. ठीक है. Guys, we have Yes, Rohit bhai. Manish here. मैं मनीष को बहुत टाइम से जानता हूँ एंड ही इज बीन ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा लेकिन या ही हैज़ गिवन मल्टीपल इंटरव्यूज आई हैव सीन ऑल हिज स्ट्रगल्स मनीष ऑफिस में बहुत टाइम से आ रहे हैं बैक टू बैक and he has given multiple interviews for sure, so he has a lot of experience, and I'm sure now that he got his placement and that too very good, which is his in hometown, so I'm sure he's happy now. And Manish bhai, stage is all yours bhai. Just let us know about yourself and let us enlighten us with your huge experience in terms of interviews and placement program. Yes bhai, Sure, please sure, go ahead. sure, sure. Rohit bhai, first of all, Rohit bhai, thank you so much. Uh, ये प्लेसमेंट मिली है तो बस आपकी वजह से नहीं नहीं तो भाई, इट्स ऑल योर्स, इट्स ऑल योर वेलकम मेरे भाई. गाइस मैं बस यही बताऊंगा कि हमारी जो जर्नी है तो इसमें सबसे बड़ी चीज है ना डीमोटिवेट नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है. हमें अगर हमने ठान लिया है कि हमें करियर स्विच करना है और बीए में आना है तो आना है. तो यहाँ पर ऑप्शन बी नहीं है, बस ऑप्शन ए है कि हमें वहां से, आप अगर किसी भी डोमेन में काम कर रहे हो अगर वहां से निकलना है तो बस ये सही चीज है. और इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने ऑलमोस्ट अराउंड 22-25 इंटरव्यूज दिए हैं. किसी कंपनी में मैंने 2-3 राउंड इंटरव्यूज दिए हैं फाइनल राउंड तक. कहीं फर्स्ट राउंड में रिजेक्शन, कहीं सेकेंड राउंड में रिजेक्शन, कहीं असेसमेंट में रिजेक्शन. तो डिमोटिवेशन भी मैं काफी बार हुआ हूँ, काफी डिमोटिवेट हुआ. बट सडनली फिर सेल्फ कि नहीं मुझे करना है. तो अब मेन क्या है, प्रिपरेशन. और प्रिपरेशन एक राइट डायरेक्शन में. और अगर हम जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बस हाँ हमने लिंक्डइन पे पोस्ट देखा, नौकरी पोर्टल पे पोस्ट देखा, अप्लाई कर रहे हैं. इट्स ए गुड थिंग. बट आपको एचआर को पकड़ना होगा, फॉलो अप लेना होगा. अगर आपने दिन में अगर 10 या 20 एचआर को ईमेल डाला है अपना रिज्यूमे के साथ कि हाँ मैंने आई एम लुकिंग फॉर जॉब चेंज, और जो भी आप रेज्यूमे में मेंशन करके भेज रहे हो, आप कंटिन्यूसली उसे एक दिन बाद उसे कॉल बैक करो या ईमेल पे फॉलो अप करो. मेरे बहुत सारे ऐसे अप्रॉक्स 10-15 इंटरव्यूज मैंने दिए बस फॉलो अप पे. मैंने एक ही एचआर को कम से कम एक महीने में कम से कम 10 या 15 बार मेल डाले हैं कि आई एम स्टिल वेटिंग एनी अपडेट. तब जाकर के इंटरव्यू सेटअप हुआ है. तो आपको एचआर को फॉलो अप करना होगा. अगर आप जैसे भी इंटरव्यूज दे रहे हो तो रोहित भाई हमेशा से कहते हैं कि इंटरव्यूज अपने रिकॉर्ड करो. इंटरव्यू आप रिकॉर्ड करो, उसको आप सुनो, आपने क्या आंसर दिया उसके क्वेश्चंस लिखो. और वही लगभग लगभग सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं. जब आप वो रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आप ये रियलाइज करोगे कि आपने कहाँ पे मिस्टेक किया है, किस चीजों के आपने गलत बताया है या नहीं. उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट करो. मैंने भी ऐसे ही किया था. सारे इंटरव्यूज में रिकॉर्ड करता था और फिर इंटरव्यू बाद में मैं सुनता था और अलग से नोट्स बनाता था. और रोहित भाई खुद इतने सारे चार्ज के डिटेल भेजते हैं. इंटरव्यूज की रिकॉर्डिंग होती है, बस आप वो गो थ्रू करो. बाकी डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, जो भी चीजें हैं आप वो करो तो डेफिनेटली अच्छा होगा. दैट्स माय जर्नी. आप किन्हीं को कुछ कंसर्न है तो आप पूछ सकते हो. Yes, guys, please ask questions. Yes, Anuj bhai, you were asking something. Hey, Rohit, thanks for that.
So Manish, one question, quick question. Actually, I found one requirement as yesterday for the fixed income business analyst. So they require the people experience on the fixed income side with experience of debt and mortgage, bond, and all. So I assured my client to for that particular things, and but once I just submit that candidate, he's like found for the JP Morgan. So like I'm asking that the candidates are feasible to take the opportunity for the mortgage or debt. So what I supposed to find as with like is it on the fixed income side or it is on asset methodology? What type of thing? Because I have to search it according as with their strengths and all with their skills wise. So what suppose I have to just find because the concerned manager just said to me that they want the people as on the fixed income, but I did not find them more as on that because they are asking for नहीं debt नहीं or अनुज भाई, I'm sorry to interrupt you. भाई, are you asking the string in terms of US no staffing? no no sir is not asking for a string. I'm asking like उन्होंने मेरे से ये चीज पूछा कि फिक्स्ड इनकम वहां पे मेंशन होना चाहिए तो फिक्स्ड इनकम किसने वहां पूछा? पे show from my manager side asking that fixed income it's surely there if a person for financial from BFSI domain so should be there the knowledge of BFSI and but वहां पे जो मैंने कैंडिडेट उनको दिया था वो बैंक ऑफ अमेरिका यूएस बैंक पे था सो उसने जो है वो फिक्स्ड इनकम और एसेट मेथोडोलॉजी पे काम किया था बट उसने जो मैंने मैनेजर ने बोला कि कहता है आपको जो कैंडिडेट सपोज टू सर्व वो फिक्स्ड इनकम का होना चाहिए so fixed income as a like methodology it will be used or what type of like मतलब कोई चीज ऐसा फाइनेंशियल आपने कभी यूज किया मनीष भाई बस ये पूछना था आ, ऐसे कोई अनुज जी, टर्म ऐसे कोई टर्म अभी मैं हाँ, अभी मैंने जस्ट ज्वाइन किया है, मुझे अप्रोक्स 1 महीने होने वाले हैं। मतलब तो मैं ऐसे सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ मैं ये बोला था क्योंकि मुझे तो कैंडिडेट्स मिल रहे थे दैट्स व्हाई मैं आस्किंग क्योंकि मैं उस हिसाब से अपनी चीजें भी आगे पढ़ता रहता हूँ और आगे देखता रहता हूँ बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो फिक्स्ड इनकम जो है स्पेसिफाइड होना चाहिए फाइनेंशियल डोमेन पे क्योंकि डेब्ट और एसेट मेथोडोलॉजी दिस ऑल आल्सो द टर्म्स ऑफ ये अनुज भाई आपको रोहित भाई ज्यादा बेटर गाइड कर सकते हैं इस मैटर अच्छा में। ओके तो ठीक है सर रोहित सर से ही मैं पूछूंगा कोई नहीं थैंक यू मनीष भाई हाँ, देखो हाँ अनुज, इफ यू आर आस्किंग कि बीएफएसआई में फिक्स्ड इनकम डोमेन और डेप्थ और एसेट मैनेजमेंट, सो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन जॉब डिस्क्रिप्शन टू जॉब डिस्क्रिप्शन एंड कंपनी टू कंपनी। हाउएवर, फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, जो बीएफएसआई हम अपने एंड से, मैं अपने एंड से कराता हूँ, दैट इज इनटू क्लेम्स एंड इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जो एक बीएफएसआई के अम्ब्रेला के अंडर में आता है। ठीक है, बट तो यस, इफ लाइक यू सेड यू कीप ऑन लर्निंग एंड यू कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग, तो आप अपने एंड से, जैसे मनीष ने भी अपने एंड से अलग अलग डोमेन मेंशन किए थे एज पर द इंटरव्यू, वैसे ही आप भी हम्म एज पर द इंटरव्यू एंड जॉब डिस्क्रिप्शन जो आपको पहले समझ मिल जाती है, उसके अकॉर्डिंगली यू कैन यू नो फैब्रिकेट एंड मैनिपुलेट द इंटरव्यू अकॉर्डिंगली एज पर योर स्पीच। वो राइट तो राइट एक राइट अब ऑनगोइंग जैसे प्रोसेस अब है। अब हाँ। जैसे अनुज भाई, जैसे मैंने अपना रेज्यूमे बनाया, ठीक, तो मैंने अपना रेज्यूमे में ये डाला कि मैंने जो मेरा जो प्रोजेक्ट है, तो मैंने HRMS, बैंकिंग, फाइनेंशियल और हेल्थ केयर और ई कॉमर्स, मैंने ये 4-5 डाल रखे थे। इसमें क्या होता है बिल्कुल। कि HR के पास जैसे अगर वो नौकरी पोर्टल पे गई, स्ट्रिंग उसने लगाया कि हमें ई कॉमर्स के बंदे चाहिए, अगर आपने रेज्यूमे में ई कॉमर्स डाला है, ठीक, तो वो रेज्यूमे आपका फैच हो जाएगा। ठीक, तो एचआर ने आपको कॉल किया कि ई कॉमर्स के मुझे कैंडिडेट चाहिए, तो आप उनको ये एक्सप्लेन कर, मैं जैसे करता था, मैं उसको ये कह देता था कि हाँ मैंने किया है। अगर एचआर ने बोला HRMS के बंदे चाहिए, मैं कहता था हाँ मैंने किया है। तो मैं उस चीज को मैं ये कह देता था कि हाँ मैंने 2 प्रोजेक्ट्स HRMS से किए हैं। और अगर उसने कहा कि ई कॉमर्स, तो मैं उनको ये कह देता था कि मैंने ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट स्क्रैच टू डिलीवर तक नहीं किए हैं, मैंने उसके 2-3 मॉड्यूल पे काम किया है, चेंज रिक्वेस्ट हो या जो भी चीजें, वो 2-3 चीजें। और अलग-अलग मैं HRMS के फीचर्स, बैंकिंग फाइनेंशियल के प्रोजेक्ट और ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट जिस हिसाब से होते हैं रियल टाइम में, मैंने चैट जीपीटी से, जेमिनाई से निकाल के एक फ्रेशमैन बना के रखे थे, ताकि मैं इंटरव्यू में उनको एक्सप्लेन कर पाऊँ। अगर इंटरव्यूअर मेरे से पूछता है कि आपने ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो उसे क्या-क्या मॉड्यूल आपने बनाए थे, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके एम क्या थे, वो मैंने एक अलग से बना के रखे थे और मैं उस हिसाब से पढ़ के उनको एक्सप्लेन करता था।
तो मनीष भाई एक क्वेश्चन इसी पे बात पे था कि अगर जैसे एचआरएमएस या ई कॉमर्स बेस्ड है, तो अगर एचआरएमएस में मुझे रिज्यूम में मेंशन करना पड़ेगा क्या मैंने पेरोल मैनेजमेंट पे काम किया है, क्या मैंने नहीं, आप उनको वर्किंग देखिए पे। देखिए अगर जैसे आप रेज्यूमे बना रहे हो ना, ठीक, हाँ हाँ। आप 2-3 रेज्यूमे बना के रखो। मैं क्या करता था, अगर एचआर ने मुझे जेडी भेजा है और जैसे कि एचआर ने मुझे कॉल किया, तो मैं एचआर को सीधा कहता था कि what kind of BA you are looking, what kind of projects you have। अगर वो एचआर में से कह रही है कि मेरे पास पोजीशन है बिजनेस एनालिस्ट, जो हम कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं एचआरएमएस हार्डकोर, मैं उसको कहता था कि हाँ मैंने 3 साल काम किया एचआरएमएस। अगर कैंडिडेट वो कह रही है कि हमें कैंडिडेट चाहिए ई कॉमर्स का, मैं कहता था हाँ मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किए ई कॉमर्स के। मैंने 2-3 सेपरेट सेपरेट रेज्यूमे बना के रखे थे, जिनको जैसा चाहिए आप उनको वैसा दो, ठीक। गॉट इट और गॉट इट। उस हिसाब से आप इंटरव्यू प्रिपेयर करो। और इंटरव्यू के पहले कम से कम 2 घंटे 3 घंटे आप अपने डॉक्यूमेंटेशन वर्क, क्योंकि इंटरव्यू में मैंने ये ऑब्जर्व किया है, जनरली ये बीआरडी एफआरडी एसआरएस, ठीक, और आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही पूछेंगे, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट्स पे जो काम किया है, आपने क्या किया है, चेंज रिक्वेस्ट और डेवलपमेंट का है, या जो भी चीजें हैं वो आप एक्सप्लेन अच्छे से, जब तक आप लिखोगे नहीं ना वर्ड में कि हाँ मैंने इस प्रोजेक्ट में क्या क्या किया है, ठीक, तब तक वो आपको याद नहीं होगा। मैंने तो इतने इंटरव्यूज दिए, मुझे एक एक चीजें याद हो जाती थी कि अगर वो कुछ पूछ रहा है तो मैं बता देता था। तो वो आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा, बना के उस हिसाब से बनाओ और उस हिसाब से एक्सप्लेन करो। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीष भाई, थैंक यू हाँ, रोहित भाई। मनीष, तो मनीष भाई आपने डिफरेंट डिफरेंट लिंक्डइन भी बनाई, तो उसको कैसे मैनेज करते नहीं थे? नहीं, देखो जैसे मैंने एक लिंक्डइन बनाया, ठीक, वहां पर टाइटल डाल दिया बिजनेस एनालिस्ट, और उसके 2-3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बस डाल दिया, और उतना कुछ डाला ही नहीं। लिंक्डइन पे उतना वो नहीं करते। यूएस स्टाफिंग के लोग जो हैं वो लिंक्डइन बहुत ऑब्जर्व करते हैं, डोमेस्टिक मार्केट में लिंक्डइन उतना ऑब्जर्व नहीं करते हैं। आप टाइटल डाल दो बिजनेस एनालिस्ट, जब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की टाइम आती है वहां पर आप स्किल्स डाल दो, अजाइल, एसडीएलसी, यूजर केस, यूजर स्टोरी, ये डाल दो, दैट्स इट, काफी है। नहीं, आप कह रहे हो ना, एक देखो, साइड आपने ई कॉमर्स का किया था, एक एचआरएमएस, तो बोथ आर हाँ डिफरेंट मैंने डोमेन्स, डिफरेंट कंपनीज मैंने होगा, तो उसमें तो वो देखिए मैंने 3-4 रेज्यूमे बना के रखे। देखिए एक रेज्यूमे मैंने बनाया, जिस रेज्यूमे में मैंने ये लिखा कि हैविंग एक्सपीरियंस विद एचआरएमएस प्रोजेक्ट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस प्रोजेक्ट एंड ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, ठीक। एक ये रेज्यूमे मैंने बनाया, उसके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने डाल दिए। मैंने वो रेज्यूमे बना के डाल दिया नौकरी पोर्टल पे, ठीक। और उसके बाद मैंने कुछ रेज़्यूमे ऐसे ही बनाए कि जैसे कि आपने बस एचआरएमएस पे काम किया है। अगर कंपनी मुझे कह रही है कि हमें बीए चाहिए एचआरएमएस की, ठीक? तो आपने कैंडिडेट एचआर से बात कर लिया। एचआर के पास तो उसने नौकरी पोर्टल से रेज़्यूमे डाउनलोड किया, उसको आप ये बोलो कि मेरे पास सेपरेटेड रेज़्यूमे है जिसमें मैंने अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया है, ठीक? तो उसमें आपने जैसे रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाले हैं, तो उसमें आप नीचे में एक कॉलम में डाल के रखा था प्रोजेक्ट, ठीक? उस प्रोजेक्ट में मैंने एचआरएमएस डाला, और एचआरएमएस के जितने भी मॉड्यूल है 5-7 मॉड्यूल, उस मॉड्यूल के थोड़े-थोड़े ब्रीफ एंड इंट्रोडक्शन मैंने डाले, और 3 पेज का रेज़्यूमे मैं वो एचआर को भेज देता था, ताकि उन्हें ये लगता था कि ये कैंडिडेट जो हम ढूँढ रहे हैं बीए एचआरएमएस, इसने 2 साल 3 साल एचआरएमएस पर किया है। तो आपको थोड़ा ना माइंड गेम खेलना पड़ेगा एचआर के साथ, क्योंकि इनके पास रेज़्यूमे का क्या है, एक कैंडिडेट नहीं होते हैं, 10-10 12-12 कैंडिडेट है। तो सबसे पहला चैलेंज ये है कि आपका रेज़्यूमे शॉर्टलिस्ट हो। उसके बाद इंटरव्यूज कितने बार होते हैं कि एचआर ने आपको कॉल किया, एचआर कहते हैं कि मैं आपका रेज्यूमे शेयर कर रही हूँ मैनेजर को, मैं रेज्यूमे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना सबसे पहला पॉइंट तो वही है। तो आप एचआर से बात करो कि आपको बीए ढूंढ रहे हो तो क्या चाहिए, उस हिसाब से थोड़े रेज्यूमे अपडेट करके उनको भेजा करो। ऐसे ही मैं करता था। Yes, guys, please. Do you have any questions? अगर आप नोएडा में हो तो आई सजेस्ट पर्सनली कि आप इंटरव्यूज ऑफिस जाके दे लो, वहाँ पर बहुत सपोर्ट होते हैं। मैंने वहाँ बहुत इंटरव्यूज दिए हैं। Yes, guys. I mean, this is what I always say to especially people who are nearby and NCR, so that you can come to office and give interviews, so that we all can support you. वहाँ पे मेरे अलावा बहुत सारे कैंडिडेट्स भी होते हैं हाँ
उनके इंटरव्यूज सब भी चलते सब हैं एंड वी सब ऑल एक हेल्प आउट दूसरे ईच अदर। सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं। किसी का इंटरव्यू कितने बजे है, हर लोग वहाँ बैठते हैं, कनेक्ट करते हैं अल्ट्राव्यूअर से और हेल्प हेल्प आउट करते हैं एक दूसरे की। तो और अगर नोएडा में है तो आप मेक श्योर चले जाया करो। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है मनीष भाई, थैंक यू सो मच भाई, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग सम टाइम फॉर अस ऑन एन हॉलिडे। रोहित भाई एक सो एक और चीज पूछनी है, हाउ मच रोहित भाई एक और चीज है, मनीष भाई आपने कितना एक्सपीरियंस शो हाँ, किया था? मैंने 4.5 साल। ओके 4.5 साल। देखो अगर जैसे कि इशू जो है ना, आप ये मत सोचना कभी भी कि आप सरवाइव कैसे करोगे ऑफिस में। ये चीज ही नहीं। आप जैसे मैंने यहाँ ज्वाइन किया स्टार्टिंग के 1 वीक तो केटी ही था। 2 दिन 3 दिन प्रोजेक्ट उन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंटेशन भेज दिए जिस प्रोजेक्ट पे मुझे डाला, तो वो पढ़ा, वो हो जाता है। आप बस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आप ऑफिस जाओ, काम करो, कोई इशू नहीं है। सर्वाइवल आप टेंशन ही नहीं लेना है कि आप सर्वाइव करोगे या नहीं करोगे, वो हो जाता है। बस इंटरव्यू कैसे निकालना है, बस इस पे ध्यान देना है। आप इंटरव्यू क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो। मैंने कम से कम 100-200 क्वेश्चन बनाए थे कि जब भी पूछ रहा है पैनल, आप उस क्वेश्चन को राइट डाउन करो, लिखो, आंसर बनाओ, उस चीज को पढ़ो और कुछ नहीं। अगर ऑफिस जाते हो तो वहां पर एक दूसरे से मॉक इंटरव्यू कर लो। अगर कोई कैंडिडेट बैठा है तो आप एक दूसरे से थोड़ा डिस्कशन कर लो, मॉक इंटरव्यू ले लो, तो ये सबसे बेटर होती है। मैंने बहुत कई इंटरव्यूज ऐसे दिए हैं दोस्तों के साथ, मैंने उनका लिया, वो मेरा लिया, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। यस यस एब्सोल्युटली गाइस, आई मीन दिस इज द प्रैक्टिस, यही हम एक्टिविटी ऑफिस में करते हैं। एंड आई एनकरेज एंड अप्रिशिएट, मतलब आपस में ही अपने आप ही शुरू हो जाते हैं। दैट इज व्हाट सेल्फ प्रोएक्टिवनेस इज ऑल अबाउट, कि अपने आप से भाई करना है तो करना है। अब हाँ बिल्कुल। रिजेक्शंस हो रहे हैं, फाइनल राउंड में रिजेक्शंस हो रहे हैं, डोंट गेट डिमोटिवेटेड। अपना बस अटेम्प्ट है कि चलना है, ट्राई करना है, एंड टिल वी गेट द प्लेसमेंट डन। सो दिस इज व्हाट आई अप्रिशिएट बस एंड एनकरेज। हाँ सही बात है रोहित भाई। डिमोटिवेट नहीं होना। ये नहीं कि किसी और का प्लेसमेंट आ रहा तो ये नहीं सोचना है कि उनका आ गया हमारा नहीं आएगा, जरूर आएगा, बस आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स ऑफिस में जब प्लेसमेंट होती है तो देयर इज ऑलवेज अ हाँ समोसा एंड ब्रेड पकौड़ा पार्टी। मेरी पार्टी बची हुई रहती है, मैं आऊंगा तो दूंगा। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। नहीं मैंने बहुत ठीक है। समोसे खाए हैं तो खिलाना है, आऊंगा। बिल्कुल 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 भाई। सो थैंक यू सो मच मनीष भाई, स्पेयरिंग सम टाइम फॉर अस। वी ऑल थैंक विश यू यू सो मच ऑल द रोहित भाई। बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स। कभी भी कैसे भी श्योर श्योर। आपको सपोर्ट का जरूरत हो तो जस्ट हम जस्ट डेफिनेटली अ बज डेफिनेटली एंड रोहित पिंग भाई। अवे। श्योर श्योर ठीक है मेरे श्योर रोहित भाई, भाई। टेक केयर मेरे भाई, थैंक यू, यू आर इन माय थैंक यू सो एलुमनाई मच। ग्रुप, ऑलवेज स्टे थैंक कनेक्टेड। यू सो मच एंड आना गुड लक मिलने यू आना। गाइस। हाँ श्योर रोहित भाई, थैंक यू। ठीक है, ऑलराइट, लास्ट of course but not the least, Kamal bhai, can you hear me? Kamal Kishore bhai. Yes, yes, Rohit bhai, I'm here. I'm sorry I'm late. अरे कोई इशू It's नहीं, just कोई not. इशू नहीं है, कोई इशू नहीं Yeah. मेरे भाई। So guys, I we have a Kamal Kishore here. He got the recent placement, good placement, and Kamal has been with us. He I guess इन चारों में से सबसे पहले के बैच के कमल ही हैं। बीच में थोड़े अप डाउन रहे और इतने एक्टिव Mhm. नहीं थे, पर ऑल ऑफ अ सडन ही कॉल्ड एंड पिंग मी, एंड इवन आई वाज सरप्राइज कि अचानक से प्लेसमेंट इतनी जल्दी हो गया। तो कमल Mhm. भाई, स्टेज इज ऑल योर्स। आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू कैन लेट अस नो a bit about yourself and then let Yes, us know yes. your interview process and the journey. जी जी जी। Please go ahead. एक्चुअली हाँ, मैं हूँ तो बहुत पुराना, बट मैं ट्राई नहीं कर रहा था ऑनेस्टली उतने तरीके से। बट अभी पिछले 8-10 महीने से आई वाज ट्राइंग वेरी हार्ड। तो मैं पढ़ रहा था और आई फाइनली, मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, वो निकल गया मेरा, एंड आई हैव गॉट द ऑफर लेटर एंड आई विल बी जॉइनिंग इट इन नेक्स्ट मंथ ऑन 11th. It's a limited company where I'm joining in, and the process is same. And like Manish said कि आप मतलब he said for 3-4 resumes, वो आप देख सकते हैं आपके हिसाब से। मैंने एक ही रखा,
बट ये है, मैंने जो एक रखा वो मैंने ओन किया। जो प्रोजेक्ट मैंने मेंशन किए उस रिज्यूमे में, मैंने 2-3 प्रोजेक्ट मेंशन किए जैसे सप्लाई चेन वाले और पर्सनल लोन ऐप के। तो वो एज ए बीए मैंने उस पर काम किया हुआ था खुद से। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव मेंशन्ड एक पर्सनल लोन ऐप का किसी एनबीएफसी कंपनी के लिए, तो मैंने एज ए बीए उसके डॉक्यूमेंट्स रेडी करे, बीआरडीज, एफआरडीज, यूजर स्टोरीज क्रिएट करी मैंने, प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स क्रिएट किए मैंने। सो एज ए बीए जैसे काम करा जाता है तो उस तरीके से उसके डॉक्यूमेंटेशन मैंने प्रॉपर रेडी किया और सोचा उस तरीके से। अब जैसे फॉर एग्जांपल सवाल मेरे पास आते थे इंटरव्यूज में कि भाई किस तरीके के चैलेंजेस आपको आए, लाइक कोई चेंज इन रिक्वायरमेंट आए तो कैसे होता था, कोई अगर रिक्वायरमेंट नहीं डिलीवर कर पाते थे तो कैसे रहता था, किस तरीके के चैलेंजेस रहते थे। तो जो भी प्रोजेक्ट थे उनके उनसे रिलेटेड ही वो फिर मैं उस तरीके से सवालों को लेता था। फॉर एग्जाम्पल पर्सनल ऐप का एक कोई सवाल आता था बार बार कि भाई क्या चैलेंजेस आए उसमें, तो मैंने बोला कि वो इंटीग्रेशन जो थर्ड पार्टी से सिबिल स्कोर का, वो प्रॉपर नहीं हो रहा था, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो हमने फिर एक मॉक, मेरे को ज्यादा पता नहीं था कि होता कैसे है, बट मैंने पढ़ा था कि भाई एक मॉक रिस्पॉन्सेस क्रिएट कर सकते हैं। तो वो मैंने ऐसा बोला, तो फिर वो ऐसे साउंड करता है कि भाई यू नो थिंग्स। तो उस तरीके से प्रिपेयर करने वाली बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओन योर रिज्यूमे, दैट इज इंपॉर्टेंट, वट एवर यू आर मेकिंग इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ओन योर रिज्यूमे, मेक इट अ गुड वन, मतलब वो तो है ही इंपॉर्टेंट, तभी आपको शॉर्टलिस्ट करके कॉल करेगा कोई। यार रिज्यूमे एकदम लगना चाहिए आपके, कोई तो है बंदा, ऐसे करके स्टैंड आउट करना चाहिए रिज्यूमे। प्लस ये एक कवर लेटर जो आप बनाते हो वो एक अच्छा लगना चाहिए। और आप जैसे भाई ईमेल्स आईडी वगैरह भेजते हैं, आयुष भेजते हैं, उन सबको फोन से ही जैसी आया ईमेल आईडी डाली और भेज दिया मेल। तो कीप सेंडिंग इट, रुकने का नहीं है। हो रहा है कहीं, हो रहा है एक इंटरव्यू चल रहा है, नहीं चल रहा, रुको मत, आया ईमेल आईडी डालो और भेजो। आपके फोन में इतने लोगों को मेल भेजोगे ऑलरेडी सेंट में पड़ा रहेगा। हल्का सा हटाया, फॉरवर्ड किया, ईमेल आईडी डाला, एडिट किया थोड़ा सा एंड सेंड इट। कीप सेंडिंग इट, रुकना ही नहीं है। ये है, मतलब दैट्स व्हाट आई डिड। प्लस जो भी बताया इनके जो क्लासेस थे, अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनेट इज देयर। आज की डेट में तो चैट जीपीटी वगैरह भी है, इतना बेहतरीन है। सब चीजें इंटरनेट से पढ़ो और सवाल देखो जो भी हैं। और अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आप सवाल क्रिएट कर सकते हो कि इफ यू हैव अ दिस प्रोजेक्ट एज ए बीए व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम, वो डालो चैट जीपीटी, वो निकल के आएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन को आता है, जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो वो जॉब डिस्क्रिप्शन डाल के चैट जीपीटी पे, एआई में, उस पे डालो कि काइंडली क्रिएट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स एज अ बीए फॉर बिलो जॉब डिस्क्रिप्शंस। वो सवाल निकल के आएंगे, वो भी पढ़ो। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर जो क्वेश्चंस होते हैं बीए वाले, वो सब इंटरनेट पे सिंपली लर्न वगैरह में एक 65 क्वेश्चंस वाला है, वो सारा ठीक से पढ़ो। तो गेट इन टू इट, थिंक लाइक अ बीए, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट्स वेयर यू विल बी एबल टू आंसर इट। और वही यार, फेलियर होगा ही ऑब्वियसली, इफ यू आर डूइंग समथिंग विच यू हैवंट वर्कड एक्चुअली, तो फेल तो होगा ही। मैं भी हुआ, सभी हुए, मनीष भी बोल रहे थे वही चीज कि वो ट्राई करने वाला है। जैसे जैसे गलत होता रहता है, आप उसका सही आंसर ढूंढ के अगले इंटरव्यू में लेके जाओ, तो वो निकल के आएगा। और वो एक एक मौका आएगा जहाँ पे वो सारे आंसर, सवाल जो करे जाएंगे ऑलरेडी पूछे गए होंगे या ऑलरेडी तुम्हारे प्रिपेयर किए गए होंगे, और वो क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही काम करेगा वो, मेहनत लगेगी, बस करते रहने का है, उतना ही है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है शायद मैंने रोहित भाई को उतना दुखी नहीं किया होगा। आई जस्ट के, मैंने कहा कि मैं शुरू कर रहा हूँ वापस से। मैं पढ़ा, मैं आता था ऑफिस से, बहुत हालत बुरी रहती थी, मैं अपना थोड़ा देखता था, पढ़ता था वो। मैं मानता यस। हूँ कि थोड़ा लक ने भी सपोर्ट किया मुझे, एंड आई क्लियर्ड इट अप। और अभी मैं दूसरा भी देख रहा हूँ कि कुछ बेहतर मिले मुझे और ज्यादा। बट या, तरीके यही हैं। एक तो अच्छा कवर लेटर लिखो, रिज्यूम अच्छा होना चाहिए, और बीए की तरह सोच के जो भी आप प्रोजेक्ट लिख रहे हो उसको बीए की तरह खुद से ही डॉक्यूमेंट्स रेडी करो। चाहे रोहित भाई को या दिखाने के लिए दिखा सकते हो, मैं दिखाए नहीं थे सॉरी, बट मैंने क्रिएट किए थे। तो आप दिखा सकते हो किसी नोन को कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए इस प्रोजेक्ट के लिए, यूजर स्टोरीज ये हैं, या ये यूज या टेस्ट केसेस हैं, या प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स हैं। वो क्रिएट करोगे ना, आपको खुद कॉन्फिडेंस आने लगेगा। जीरा में खुद से स्टोरीज डाल के देखो कि ये स्टोरीज है, ये सब स्टोरीज है, एपिक को एपिक, वो सब चीजें। ओ यही सवाल है जो इंटरनेट पे सब मिलेगा आपको कि ये सवाल पूछते करके, उस हिसाब से प्रोजेक्ट के हिसाब से उन सवालों के आंसर्स देखो। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से उन सवालों के आंसर देखोगे ना, तो आप आसानी से कर पाओगे। तो फिर आपको भी लगेगा कि अच्छा, वो भी कहेगा कि भाई इस बंदे ने काम किया, इस प्रोजेक्ट पे इसको ही पता है। अगर कुछ नहीं पता है, कोई नया प्रोजेक्ट की चीज है, कोई नया प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा है, कह दो यार कि सर, मतलब उस चीज पे मैंने काम नहीं किया, बट आई
आई एम लर्निंग दैट, तो कुछ भी मतलब उस तरीके से देख सकते हैं। तो वो भी देखते हैं कि भाई इस डोमेन में उस बंदे ने नहीं काम किया है, तो कंसिडर करते हैं कोई कोई। बाकी मेजोरिटी अगर आपने अपना रिज्यूम ऑन कर लिया और रेडी कर लिया तो 70% ऑफ द वर्क डन हो जाता है वहां पे। वही तरीका है। बाकी तो मेजोरिटी मनीष ने जैसे बताया, मैं प्रोसेस वाला वही सब चीजें यार, और दैट्स हाउ आई डिड इट। और बाकी तो फिर रोहित भाई हैं ही ऑलवेज। मैं जो भी कुछ होता था मैं कॉल कर लेता था कि ये इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू हुआ। मेरे बीच में शायद कॉल भी नहीं किया क्योंकि वो फेल वेल हुआ, तो मेरे को पता था एक आध मेरा बहुत ही खराब चला गया है। बट फिर अगेन जो फेल हुआ, वो होते हैं ना, वो जाकिर खान साहब कहते हैं कि कुछ कोशिशें तैयारियों के लिए होते हैं, तो वैसे वाला हिसाब है, बाद में फिर हो ही जाता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली कमल भाई। जी जी जी। Yes, guys, और please ask पूछना है तो questions. पूछ सकते हैं आप। हाँ। Akash, Ankush, Anubhav, Anuj, Avinash, Ayush, Chandranshu, Mamta, Eric, Deepak, Dakshit, anyone, Praveen, Sumit, Tyagi, Pankaj. Yes, guys. समथिंग मनीष भाई ने सारे आंसर कर दिया, अभी किसी को कुछ नहीं है शायद से। नहीं यार, everyone has their own experience. कमल, चलो हाँ हाँ जी प्रवीण जी। हाय कमल। हाँ प्लीज। हाय हाय, हाँ, कैसे हैं आप? कमल अपने स्टार्टिंग में आई एम गुड, कांग्रेचुलेशन थैंक यू सो मच। आपको। और होप अगेन बोला कि आपको और अच्छा पैकेज मिले। जी जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने स्टार्टिंग में बोला ना कि आपने बीए की तरह सोचा, और आई थिंक आपने जो बोला कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट बना के दिए। मुझे भी जानना था, आपको पहले पहले बीए का एक्सपीरियंस है या फिर क्रैच से किए? मुझे मुझे नहीं है, मुझे नहीं है अच्छा, इतना पढ़ के, इतने क्लासेस से उतना समझ में है बीए करता क्या है। बीए इज नथिंग, इट्स लाइक अ ब्रिज, आपको पता ही है राइट। डॉक्यूमेंटेशन का ही काम है मेजोरिटी, और हैंडलिंग का है टीम को और इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स का। अगर आप कोर में अच्छा, देखोगे यही काम, राइट। तो उस तरीके से ही अच्छा। सोचने का होता है। जैसे अगर कोई ऐप भी देख रहे हो आप, जैसे मेरे से एक सवाल पूछा था किसी ने कि हम्म, मेरा डोमेन नहीं था हेल्थ वाला, तो मैंने हेल्थ वाला मेंशन भी नहीं किया था। तो उन्होंने कहा कि आपका है नहीं तो कैसे करोगे। मैंने कहा अब आई आई थिंक लाइक अ बीए ओनली, राइट, इट्स नॉट अबाउट द डोमेन, आई कैन डू इट। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो यूएस का था वो कोई, अच्छा, तो मुझे यूएस का तो ऑब्वियसली नहीं पता था। फिर मैंने फिर भी बताया कि ये फीचर्स हो सकते हैं, ये फीचर्स हो सकते हैं। मैं अपना दिमाग सोचा उस तरीके से कि हम्म, भाई लॉगिन, ये किसी ने मेरे को एक ने पूछा था कि भाई अगर लेट्स से यू नीड टू क्रिएट एन ऐप वेयर इन फूड डिलीवरी ऐप, जैसे एनजीओ, जैसे खाना अच्छा, जो वेस्ट बच जाता है शादियों का, तो उसमें क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो वो बे की तरह ही सोच के कर सकते हैं, अच्छा, राइट। मैं बोला, मैंने कहा लोकेशन डाल सकते हैं, राइट, लॉगिन रख सकते हैं करके, बचा हुआ है कोई दूसरे अगर लोग हैं शादी वाले जिनको डालना है कि भाई हमारा खाना बच गया और किसी को देना है, तो जिनको चाहिए वो भी रजिस्टर कर सकते हैं, जिनको देना है वो भी रजिस्टर कर सकते हैं, ऐसे करके सोच के मैंने बोला करके। तो जो आप दिख रहे हो अपने रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स, उनके पहले कर लो सबसे पहले तो, कि भाई ये ऐसे ऐसे बनेगा। आपके आधे सवालों के जवाब ना वो इंटरव्यू वाले उन बनाते बनाते आ जाएंगे, कि आपको लगेगा कि अच्छा यार ये ऐसे है ऐसे है। और मेरे को पूछा है बीआईडी में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, मतलब चीजें कंसिस्ट करती हैं वो सब चीजें, और रिक्वायरमेंट में क्या चैलेंजेस है, कैसे प्रायोरिटाइज करते हो आप रिक्वायरमेंट टेक्निक्स, रिक्वायरमेंट्स को, क्या टेक्निक्स हैं रिक्वायरमेंट्स की। ये सब चीजें बेसिक, ये तो सब आपको इंटरनेट पे भी है, भाई ने भी बताई हैं अपने उस पे इंटरव्यू रिकॉर्डिंग्स, उस पर क्या नाम है अ, आपके जो जो रिकॉर्डिंग है क्लासेस वाली उसमें भी है। बाकी इंटरनेट है, बिल्कुल, तो उन सब में आंसर मिल जाएगा करके। तो ये सब चीजें हैं। ठीक। ठीक है। और एक और आपने बताया जो यूजली मैं कभी किया नहीं हूँ, वो है कवर लेटर का। तो जो हाँ आप यार वो कवर बहुत लेटर जो इंपॉर्टेंट है। बनाते थे, हाँ, तो मुझे वो थोड़ा जानना था। वो तो आप आई थिंक बहुत क्रिस्प और शॉर्ट रखना चाहिए, तो आप यूजली क्या कंटेंट डालते थे उसमें? मैं क्रिस्प और शॉर्ट भी नहीं है मेरा, मैंने ऑनेस्टली बोलूं मेरा प्रॉपर है। देखो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बड़ा था, बड़ा इन द सेंस अच्छा, इन टोटल अगर मेरा देखोगे मेरा 12 साल के आसपास का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अच्छा, बट एज ए बीए मैंने उसको डाला है 4.5 अराउंड आउट ऑफ 12, ठीक है। तो कुछ नहीं उसमें डालना है कि दैट यू आर अप्लाइंग कमल फॉर अ आपने बीए कुछ रोल एंड ऑल। बोला हाँ, तो? नहीं, एक्चुअली नहीं बीच में फिर भी कट जब, गया था नेटवर्क। अच्छा अच्छा सॉरी।
मैं ये बोल रहा कि उसमें सिर्फ इतना डालना होता है दैट यू आर अप्लाइंग फॉर अ बीए रोल एंड ऑल। मैं आपको भेज दूंगा अपने वाले कवर लेटर का स्क्रीनशॉट, अगर किसी के लिए रेफरेंस में हेल्प हो जाए तो प्लीज आप उससे हेल्प ले सकते हैं अपना, लेकिन क्रिएट कर लेना उसके हिसाब से। और उतना लिखना है कि बीए रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो आप करके, एंड यू हैव दिस स्किल, जो भी स्किल चाहिए होता है एज ए बीए वो सारे मेंशन कर देना वहां पे। प्लस यू हैव वर्कड दिस इन दैट कंपनी, वट एवर कंपनी हैव वर्कड ऑन, जो भी बड़े नाम है उसको बोल्ड करके, एंड दैट यू आर अप्लाइंग फॉर दिस रोल एंड यू वांट टू डिस्कस एंड गेट अलाइन विद द बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी। वैसे करके आप मेल डालोगे, एक अच्छा सा बॉडी मेल पे दिख जाता है वो। तो अगर मैं देखूं स्क्रीनशॉट दिखा दूं मैं वो रोहित भाई, हाँ हाँ, श्योर शेयर श्योर कर सर। शेयर कर सकता हूँ। या दिखा श्योर देता श्योर हूँ, एक श्योर। सेकंड, फोन में ही है, मैं दिखा देता हूँ। क्योंकि आप घर जाने का वेट करोगे ना, किसी दिन होता है किसी दिन नहीं होता है यार, मेरे साथ तो ऐसे ही था। मैं तो फोन में पड़ा रहता था, आती थी, मैं सुबह जाता था ऑफिस जाते हुए, मैं ईमेल्स कॉपी करता था, पेस्ट करता था, भेज देता था, प्लस नौकरी पे अप्लाई करता रहता था। एक सेकंड, You applied on चलो LinkedIn as well? मैंने लिंक्डइन से ऑनेस्टली बोलूं, मैंने लिंक्डइन से अभी किया, बट कम अप्लाई किया था, मेरा नौकरी से ही बहुत कॉल्स आ रहे थे यार, बीच में रुक गए थे Okay. ऑनेस्टली, बट नौकरी से बहुत कॉल आया मेरे को। और एक्चुअली में मेरे को इसमें अप्लाई करते हुए ऐसा लगा कि भाई बहुत सही लाइन में जा रहा हूँ। जैसे कभी कभी बॉस को मन करता है ना बोलने का कि भाई आज से नहीं आ रहा मैं बॉस की खुंदस में, तो मैंने कहा इतने जॉब्स है इसमें, वो मतलब छोड़ के आराम से मिल जाएगा दूसरा, अगर आपको एक्चुअली काम आ जाए तो। जैसे भी तो थोड़ा तकलीफ हो रही थी क्योंकि नया नया था सब, राइट, तो वो चीज थोड़ा है, तो वो Mhm. आराम से हो जाएगा अगर ट्राई करते रहे तो। एक सेकंड मैं शेयर कर रहा हूँ। ये दिख रहा है मेरा मेल, स्क्रीन जी, दिख रहा है मेरा? yes, 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 हाँ दिख रहा है। ऐसे ऐसे लिखा है Yes. मैंने, ऐसे लिखता था मैं, मतलब नॉट एज बीए बट ऐसे पहले भी मैंने जो जॉब्स को किया है तो उसको मैंने अपने हिसाब से बीए के हिसाब से उसको एडिट किया हुआ है। आपको एडिशन डिलीशन कुछ करना है आप देख लीजिएगा, जस्ट टेक अ रेफरेंस ऑफ इट, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन, और मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसे ऐसे लिखा हुआ है, इसे पढ़ लीजिए आप। एज ए ड्रिवन डिटेल ओरिएंटेड एंड प्रोएक्टिव प्रोफेशनल विद इन एक्सपीरियंस इन आईटी डोमेन, I specialize as a business analyst in documentation, requirement gathering, client communication, risk analysis, gap analysis, ये सब चीजें। कंपनी के नाम डाल दिए मैंने, भाई का कंपनी का नाम ऑप्टिमाइंड्स, पीवीआर, वार्नर, डीएलएफ, ये सब डाल दिया। पढ़ पा रहे हैं आप सब? हाँ हाँ, एब्सोल्युटली। मैंने भाई ऐसे क्या डाला ये है। शेयर कर सकते हो क्या? हाँ मैं शेयर कर दूंगा, अरे मेरा खुद का बनाया हुआ है तो किसी भी टेक्स्ट कर ऑब्वियसली दो तो आप, कॉपी हो जाएगा। मैं आप एक कमल मुझे सेकंड, कर देना, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, बट इसको जब भी करो तो चेंज करके थोड़ा आप अपने हिसाब से भेज देना। कहाँ भेजू भाई इसको? आप मुझे शेयर कर दो कमल, मैं आपको कर देता हूँ, ठीक है। आप मुझे पर्सनली कर दो, आई शेयर इट। हम्म, बाकी इसमें पता है गाइस, क्या? जस्ट टू मोर थिंग्स इफ यू वांट टू ऐड, इनफैक्ट थ्री थिंग्स। नोटिस पीरियड मेंशन कर देना, करंट सैलरी हाँ मेंशन कर देना, और ये चीज एक्सपेक्टेशंस। सॉरी, हाँ मैं वही वाला भेजता हूँ जिसमें मैंने मेंशन किया है, सॉरी मैं वही भेज देता, रुक जा। हाँ हाँ हाँ, मतलब मेंशन उससे किया है थोड़ा वो, ये होता है कि जल्दी रिप्लाई आते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मैं बाद में मेंशन करना शुरू किया था, मैंने बहुत मेल्स भेज रखे हैं तो वो नीचे है शायद, हम्म। कोई इशू नहीं, तो आप मैंने आराम मेंशन से किया। कभी भेज देना। ये मैंने मेंशन किया हुआ है नीचे, अगर देखोगे सीटीसी एक्सपेक्टेड नोटिस पीरियड एक्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस, हम्म। तो सही कह रहे हैं भाई, वो आता है क्योंकि वो बाद में एचआर पूछेगा ही आपको। हाँ, इसमें ये होता है कि हाँ एचआर का थोड़ा टाइम सेव हो जाता है, तो वो फटाफट इसको प्रोसेस कर देते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, और हाँ, वो जस्ट लाइक और दिस। बॉडी मेल पे लिखा हुआ सीधा सीधा दिखेगा ना, वो भी सोचता है कि यार ये कोई सही बंदा है करके, कि इसने प्रॉपर सब कुछ ऐसे डाला है, हाँ, और ये वो थोड़ा फिर जेन्युइन कॉल्स सा हो बढ़ जाता है जाएंगे फिर आप। वो। हाँ, हाँ। और लगता है कि कोई प्रोफेशनल आदमी है करके, और रिज्यूम भी आपका अगर आप बोलोगे तो आई कैन शो यू रिज्यूमे, शायद से रेफरेंस मिलके आप और बेटर कर पाए। भाई वैसे तो अच्छा ही होगा, भाई ने बनवाया होगा। भाई मैंने आपको भेज दिया है ना? हाँ हाँ, आप मुझे शेयर कर दो, एंड आई
वो नंबर remove नंबर all कट the. कर देना, वो मैंने नंबर भी डल गया, मतलब नाम नंबर जो भी है देख लेना, चला भी हाँ जाएगा हाँ, तो वो ऐसे। मैं उसको प्रॉपरली एडिट कर दूंगा ना. हाँ हाँ हाँ। और रिज्यूमे तो मेरा ऐसे था। जैसे यहाँ डाला ऑप्टिमाइंड्स का, तो मेरे को थोड़ा बैंकिंग का पता है क्योंकि बैंक में ही हूँ मैं, तो था मतलब अभी चेंज कर रहा है तो इसलिए पर्सनल लोन ऐप ले लिया मैंने। इजी हम्म. हो गया मेरे लिए समझाना और बोलना भी, और उसी हिसाब से मैंने काम कर लिया। और पीवीआर में काम किया था एक ऐप पे, ऐसे करके डाल सकते हैं। वही है तरीका। बाकी बॉडी मेल पे लिखोगे ना ऐसे कवर लेटर तो आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, मतलब कॉल जाएंगे आपको फॉर श्योर, बढ़ जाएंगे। ठीक है. जी या अनुज भाई, प्लीज, you're asking. Yeah, Rohit sir. So, Kamal, congrats for that. One question, थैंक यू। like as with the like as you mentioned, you have previous experience with the finance, and you mentioned Warner Brothers and all. So there is one question, like if I have something like opening from e-commerce, so shall I made the same as depends on the requirements as per the opening, or shall I just prepare as with the anonymous side like of the business analyst, because it means like shall I mention all the ERP tools, or shall I mention the e-commerce domain, or shall I mention it depends on requirement to तो open as per that. जो जो जवाब आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली दे पाओ, जो Mm-hmm. आप ओन कर पाओ, वो चीज मेंशन करनी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। Okay. अब जिस चीज में आप फंबल कर जाओ, कोई प्रोजेक्ट मेंशन कर गए तो वो गड़बड़ हो जाएगा। जिस चीज को आप ओन कर पाओ, जिस चीज को आप ऐसे कॉन्फिडेंटली हर चीज एकदम इन एंड आउट बोल पाओ, Mm-hmm. वो चीज मेंशन करो, वो मैं सजेस्ट करूंगा। अच्छा, ओके, ठीक है, मतलब हाँ प्रीवियस एक्सपीरियंस जैसा भी हो, बट ओपनिंग जैसी हमारे पास आती है, जैसे अमेजोन की ओपनिंग है तो मुझे ई कॉमर्स डोमेन के हाँ, हिसाब से प्रिपेयर करना है, राइट? कर अगर जैसे सकते बी हो एफ एस आई डोमेन। लेकिन नहीं नहीं, मैं ऑनेस्टली बोलूँ वो भी कर सकते हो, जो मनीष भाई ने बोला कि उसके हिसाब से भी चेंज कर सकते हो अगर आपको लगता है। बट मैं अगर ज्यादा इनिशियली थोड़ा सा भी आगे जाके कर सकते हैं, मेरे को लगता है कि अभी स्टार्ट किया है आपने ढूंढना। हाँ, क्योंकि एक्चुअली मतलब ये कंसर्न है कि जैसे डोमेन कहते हैं, अगर स्पेसिफाइड करेंगे तो फिर वहां पे तो डोमेन का आपको स्पेशलाइजेशन भी आना चाहिए, क्योंकि हेल्थ केयर डोमेन अलग हो गया, बीएफएस अब है ये टोटली डिफरेंट। अभी आप सो कौन सा डोमेन मेंशन कर रहे हैं? मैं मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ कि मतलब जैसे ओपनिंग है उस हिसाब से मुझे अपने प्रिपेयर करना पड़ेगा ना, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट तो नॉर्मल हो गया, बट एज फॉर हम्म, दैट क्योंकि जब डोमेन स्पेसिफाइड हो जाएगा वहां पे तो वो डोमेन के एक्सपर्टीज क्वेश्चन आएंगे, राइट? नहीं, आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन उससे पहले बेसिक क्वेश्चन जरूर आएंगे ना, वो तो बाद में बेसिक तो आएंगे। आएगी, नहीं बेसिक तो मैं हाँ प्रिपेयर हूँ, मैं प्रिपेयर उसके लिए करना अच्छा, चाहता हूँ कि हाँ जैसे बिल्कुल वैसे कर डोमेन सकते हैं। वाइज है तो मुझे डोमेन वाइज भी तो अपने आप को करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो बिल्कुल इंटरव्यू बिल्कुल पैनल के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? कि बिल्कुल पैनल में कर वो सकते कैसे हैं। क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बट मैं वही कहूंगा कि जहाँ लगे कि भाई चेंज करके डोमेन एडिट करना है रिज्यूमे में, वहां करना। अदरवाइज आपको लगता है कि जो आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिज्यूमे बना हुआ है उसके बेसिस पे निकाल निकल जाएगा, या उतना ज्यादा सामने वाला नहीं है कि डोमेन स्पेसिफिक ही चाहिए, बिकॉज देयर आर कंपनीज, ऐसा जरूरी नहीं है कि डोमेन स्पेसिफिक ही ढूंढती है, राइट? अच्छा, अगर है कि भाई डोमेन स्पेसिफिक नहीं है, कि हो सकता है, तो वहां पे उसको आप चांस ले सकते हो उस तरीके से। बढ़िया है कि मतलब डोमेन स्पेसिफिक है, वहां चेंज कर लो। प्रेफरेंस दैट्स बोल रहा था क्योंकि वो प्रेफरेंस थोड़ा सा तो मिलता होगा एज पर माई नॉलेज, यार, क्योंकि अगर आप अगर। कॉन्फिडेंटली यहाँ पे बोल रहे हो ना कि भाई मैं तो एक ऑनेस्टली बोलूँ, मैं माय आंसर इज ऑलवेज सेम। वो ये सब हम्म, चीजों में मेरे को कोई बोलता था जो चीज मुझे नहीं आती और मेरे को सीखनी है, मैं यही बोलता था। और शायद मैं बहुत यंग एज से बोल रहा हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने कहा एक्सेप्ट रॉकेट साइंस सर, देयर इज नो रॉकेट साइंस, आई कैन लर्न दैट। कॉन्फिडेंस दिखना नाइस चाहिए, वो कहता है कि हाँ भाई ठीक है तू अच्छा। तो ऐसा नाइस है नाइस एक्चुअली नाइस में वही, नाइस, अगर आप एब्सोल्युटली, देखो तो। इट्स ट्रू, तो राइट। हाँ, तो मेरे जैसे आधे जॉब तो मेरे शायद इस लाइन से हो जाते थे कि अच्छा भाई ठीक है तो कर लेगा अच्छा। हाँ, देखो अनुज नहीं, भाई, जस्ट टू एक्सटेंड कमल भाईज आंसर, देखो जी जो डोमेन चेंज और रेज्यूमे चेंज और ट्वीक करने की बात हो रही है, दैट कम्स व्हेन यू हैव गिवन लाइक 15-20 इंटरव्यूज, कंपनी जी इंटरव्यूज, ठीक है? जी सर, राइट सर। इनिशियली फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव आई वुड से दैट stick to your fundamentals and concepts of basic understanding, which means what is a business analyst, what Right. are the roles of business analyst, then all these specialization
domain, industry specific, it becomes regardless because you have the understanding. Even though you come from HRMS, e-commerce, BFSI, and they are looking for aviation, they are looking for automobile, and they are looking for some other domain, but you have the understanding, you know how to interact with the client, you know how to document, you know how to groom your Scrum team, and you know how to design, develop, test, and deploy. So Got it. whether it is aviation, whether it is automobile, whether it is HRMS, you fit suitable. So that is what Kamal is saying, and that is what I am saying. Now coming to Manish point, yes, that point is also true. I mean, as per the job description, if your resume suits that, fits that, and you can tweak your resume accordingly, then it is also a good practice that you can change your resume according to the job description, according to the company's domain specific requirements. But that comes in later picture ना, क्योंकि तब Right, sir. आपको भी नॉलेज हो जाएगी कि भाई हाँ ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं डोमेन स्पेसिफिक, तो आई हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. समझ गया सर. थैंक यू तो कमल वो भाई. एक थैंक यू. इवेंचुअल एंड ऑनगोइंग प्रोसेस है, which आई एम श्योर जब आपके मल्टीपल इंटरव्यूज होंगे देन आई एम श्योर वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में एक अपने लिए ही स्ट्रेटेजिक प्लान सेटअप हो जाएगा. राइट राइट. वही मैं थोड़ा प्लान वे में थोड़ा सोचा था, मैं इसीलिए आपको बताया. बस थैंक यू. हाँ गॉट इट. हाँ हाँ एब्सोल्युटली अभी मेरे भाई. कॉम्प्लिकेट मत करो, सिंपल रख के सिंपल पे ही चलो, बाद में देखना वो सब मेरे हिसाब से तो, क्योंकि इतना कोई डोमेन स्पेसिफिक बहुत सारे क्लाइंट तो मुझे नहीं, बहुत सारी कंपनी तो मुझे नहीं लगता उतना देखती हैं, मना हाँ नहीं हाँ करूंगा, सही कह रहे थे मनीष भाई, बट इनिशियली अभी सिंपल रखो, आप फोकस करो बेसिक पे काम करके और कोर अपना मजबूत करने का. कोई कोई ठीक है. कंपनियां वेवर दे देते हैं कि भाई डोमेन नहीं जानता लेकिन इसका कोर बड़ा मजबूत है, तो उस पे काम करो मेरे हिसाब बिल्कुल. से इनिशियली तो बिल्कुल. गॉट इट सर. थैंक वेरी यू. गुड है रोहित भाई, कॉन्ग्रेट. या थैंक यू. Yes, guys. Any more questions? Any more? Anyone? ठीक है. All right. ठीक है. Kamal bhai, thank you so much once again, bhai. Thank you so much for your time. We really appreciate. Thank you so much. And we all wish you all the best for your future endeavors. And stay always connected. आना ऑफिस आना जब टाइम लगे आपको. हाँ हाँ And बिल्कुल, मेरा थोड़ा then तबीयत we का है connect, तो bhai. मैं बिल्कुल आऊंगा आपके पास में. हाँ हाँ जी जी. All right. All right. ठीक है. All Thank you right. so much, Kamal and all. Thank you Thank so you much for your everyone. time. Yeah. Thank you. All the Thank you. best, मेरे भाई. Stay connected Thank always. you. Yes, Pradeep. Okay. Thank you. Okay, guys. Stay safe and be safe. I'll share the recording. Thank you so much, guys. Have a great day. थैंक यू रोहित भाई. थैंक यू. Thank you. थैंक यू सर. थैंक यू. भाई. Welcome, welcome, guys. Have a good night.